Can you be more vocal about the failures that you have dealt with throughout your journey? In my case, I feel failures ज़्यादा थे सक्सेस से ज़्यादा. Like how I told you कि I wasn't a natural talent. Like you're in a situation where you have a lot of pressure Yeah. and you have to either take wickets or you have to make sure that the over is a maiden. What is your mentality then? Like, what do you visualize? Like I told you, it was different a few years back. A few years back in this situation, I would have been a little nervous. After working on the mental side of it, first thing is, I think I watch the game closely. Like even when, say, another bowler is bowling, so which balls are working for him? That is basically reading the game. You must have sacrificed on a lot of things too, especially when you were playing Ranji. When you decide on taking cricket or for that matter any sport as a career, so your family life obviously takes a backseat. When my dad was battling cancer, I wasn't there for him. So, what would your advice be to any young aspiring cricketer who's watching this podcast? Don't make cricket your life. Hello guys, welcome back to another beautiful episode of Escape the Mold with Josh. The guest that we have today is Royston Dias. Royston Dias is a guy from Vasai, from a small town who has made it big in cricket. In this particular episode, we've talked about the sacrifices Royston has made throughout his career, the downfall he has faced, and yet how his mindset really helped him to become what he is. I'm pretty sure you guys are going to love this episode, so please do like, share, and subscribe. But for now, slip into this beautiful episode of Escape the Mold with Josh. Thank you. Obviously, very excited. From the scale of 1 to 10, how excited are you? 11. 11? Yeah, Okay, first perfect. podcast. So Okay. I hope this experience happens to be the best experience for both of us. yeah. Okay. My first question to you is, for the audiences, can you please break down who Royston Dias is and how did cricket happen to Royston Dias? Okay. You asked me who Royston Dias is. Royston Dias is just a human being, quite honestly. इतना मैं मतलब कुछ उस बारे में बोलना नहीं चाहूँगा. बट इफ़ यू आस्क मी हाउ क्रिकेट हैपेंड, तो ऑनेस्टली मतलब मेरे मॉम को अगर आप पूछोगे तो दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट व्हाई आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. क्योंकि उनका ऐसे बोलना है कि पढ़ाई का लाइक बेसिकली तुझे पढ़ना नहीं था करके तू क्रिकेट खेल रहा था. But it's not like that. Obviously, I was always interested in playing cricket, but not like जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो from the age of 6, 7, 8, you can see them that they're talented, made for cricket basically. I think in my case, I started playing proper leather ball cricket only at the age of 15, 16. तब तक तो मैं खेल भी नहीं रहा था. नॉर्मल गली में टेनिस बॉल क्रिकेट एंड ऑल वो तो खेलते ही है, सारे ही बच्चे खेलते हैं इंडिया में. बट आई थिंक एट 16 आई यूज्ड टू प्ले एट द चीमाजी अप्पा ग्राउंड. तो वहाँ पे देयर इज दिस कोच विनोद किनी सर, जो मेरे फर्स्ट कोच है, एंड आई स्टिल वर्क विद हिम समटाइम्स. तो डैड एंड आई यूज्ड टू गो टू प्ले ऑन द चीमाजी अप्पा ग्राउंड, और ऐसे लाइक नॉर्मल, नथिंग सीरियस, बट जस्ट शाम को कभी गए खेलने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया ऐसे. तो ही स्पॉटेड मी एंड ही वाज लाइक, ठीक है, आई थिंक यू बोल वेल, व्हाई डोंट यू जॉइन आर नेट्स, आर अकेडमी. तो डैड वाज लाइक, ओके ठीक है, जाके यहाँ पे वैसे भी टाइम पास ही कर रहा है, उससे अच्छा वहाँ पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर ले. मे बी इफ़ यू हैव द स्किल, मे बी ट्राई एंड पॉलिश इट ऑफ. तो मैं वहाँ जाने लगा. वहाँ से अंडर 19 का सेंटर्स के मैचेस होते हैं बेसिकली. वसई, विरार, पालघर डिस्ट्रिक्ट, इनका एक सेंटर्स के मैचेस होते हैं. अंडर 19 सेंटर्स होते हैं. तो वहाँ पे सिलेक्शंस के लिए मैं गया, एंड देयर आई वाज पिक्ड.
I didn't get a chance to play the first year. I was dropped from the team. Reasons छोड़ दो, but yeah, I didn't get a chance to play. So next year वसई में मुझे चांस नहीं मिल रहा था करके किनी सर ने मुझे बोला कि आप विरार में जाके ट्राई करो, बिकॉज वसई एंड विरार आर 2 डिफरेंट सेंटर्स. तो मैं विरार गया और फिर विरार से मैंने तो तभी विरार एंड पालघर द एंटायर बेल्ट वॉज वन सेंटर. Normally it used to be like Vasai is a different center, Virar is a different center, Palghar was a different center. But for some reason उस साल उन्होंने क्लब कर दिया था. So I got picked in that one. Okay. And fortunately I got some 24 wickets in 8-9 games. Wow. So from there basically my journey started. I was spotted by Satish Samant sir from Bombay. He was the coach of the Mumbai under-19 team. From there I got picked for the Mumbai Probables, the under-19 Probables. And from there, my cricketing journey sort of took off. But it wasn't like any other cricketer's journey जहाँ पे natural talent रहता है. 5-6-7 साल के बच्चे लोग को देख के ही पता चल जाता है कि अरे ये तो आगे जाके क्रिकेट खेलने ही वाला है. wasn't that kind of a story. It's a little different. आगे जैसे आपसे बात करूँगा you'll come to know the struggles, but this is where I started my cricketing journey. How old were you when all this was happening? I was 17. First year when I got Okay. picked for the Vasai center, I was 17. Mm-hmm. 18 में I got a chance to play. Okay. Basically मेरे under, because I'm a June born, so it works as उस time पे if you are September 93 के ऊपर हाँ. तो आपको चांस, मतलब basically then you are not picked वो next year. तो Okay. बेसिकली ऐसे था कि आई वॉज 19 years old, बट आई स्टिल आई वॉज 18 years old, बट स्टिल इट वॉज माई अंडर-19 का लास्ट ईयर. Okay. सो नेक्स्ट ईयर जब भी मैं 19 years का हुआ तभी आई हैड ऑलरेडी पास्ड द क्राइटेरिया. ऐसे था. Okay. So, Okay. Can you break down the stages that a cricketer has to go through, when he or she starts the cricket, and then if they want to play for India, what is the process that cricketers have to go through in India? Yeah, so when I started playing cricket, tabhi it was completely different because IPL wasn't there. This is 2007, 2008 I think. तो उस टाइम पे IPL नहीं था. तो that time cricket का selection process was completely different. So basically you used to play for centers, like how I told you. From there you used to play for clubs, जो A division clubs होते हैं मुंबई में. We don't really have district matches as selection criteria, क्योंकि district बाकी के states में district matches वगैरह होते हैं, but Mumbai has a club culture. They don't have district culture per se. So you play for clubs. So clubs are also A division, B division, C division. So ideally if you want to get picked for the state, so you have to play A or B division. Okay. उसके नीचे होगा तो कोई कंसिडर नहीं करता है unless it's an exceptional case. But generally people who play the A or B division, they are picked for the state probables. Mm-hmm. Once you get picked for the probables, उसके बाद selection matches होते. Probables are like 40, 45, 50 players. उनके बीच में they make teams. Okay. And then you get from there, if you do well, then you get picked for the state team. Okay. Okay, 15 में. Okay. From there, once you do well for the state, this is age group. So once you do well in the age group, then you get picked for the Ranji Trophy. Okay. Once you do well in the Ranji Trophy, if you do exceptionally well, that is, then you might get picked for the Dulip, Deodar उस time पे था. ये सब tournaments में आप select होते हो. Once you do well there, then you get picked for say zones हो गया, India A, and once you do well there, then you get picked for India. This was a few years back. Okay. Now with the IPL coming in, this process has completely changed because yes, ये सब अभी भी exist करता है, but for a lot of players who have played for India already, some of them have not even played the Ranji Trophy. Or some of them have played 1 or 2 or 5 games of the Ranji Trophy. Because अभी ऐसे हो गया कि if you're playing say
अ लोकल स्टेट T20 लीग और वहाँ पे आप अच्छा करते हो तो आप सीधा bypassing everything you straight away get picked for the IPL. If you get picked for the IPL and you do well there for a couple of seasons here and अगर वो दो seasons. Yeah. Okay. maybe 1 season 2 seasons that you don't know, there's no sure short process कि इतना अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप इंडिया खेलोगे, ऐसे नहीं है. इट्स ऑल रिक्वायरमेंट बेसिस बिकॉज कभी कभी कैसे होता है इफ़ यू आर प्लेइंग से IPL और इंडियन टीम में एक पर्टिकुलर प्लेस का रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो मैटर हाउ वेल यू डू ओवर ईयर यू आर नॉट गोइंग टू गेट पिक्ड बिकॉज वहाँ पे उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है. से एन ऑलराउंडर फॉर एग्जाम्पल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है टीम में, इंडियन टीम में, तो वो जब तक अच्छा कर रहा है तब तक नो मैटर हाउ वेल यू डू ओवर ईयर there is a very small chance that you will get picked for the Indian team. But at the same time से हार्दिक पांड्या gets injured और आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो IPL में तो you straight away get picked for the Indian team. Okay. So it's all yes performance but at the same time it's also a little bit of luck as well कि you know वहाँ पे क्या हो रहा है इंडियन टीम में, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, इंजरीज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है टीम की. बिकॉज से इफ़ यू आर प्लेइंग इन द सब कॉन्टिनेंट तो फिर आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा लगेगा टीम में. इफ़ यू आर प्लेइंग इन सेना कंट्रीज तो फिर आपको शायद फास्ट बॉलर्स एक्स्ट्रा लगेंगे. सो इट इज़ ऑल रिक्वायरमेंट बेस्ड बट यू कैन बाईपास बेसिकली ऑल द प्रोसेस इफ़ यू आर डूइंग वेल एंड गेट पिक फॉर द IPL स्ट्रेट अवे तो फिर वहाँ से आप इंडिया भी खेल सकते हो विदाउट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट. Okay. ऐसे देयर इज नो पर्टिकुलर वे इन विच यू आर गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया. Who was your coach at Chimaji Upper Ground? You just mentioned Vinod Kini sir. Vinod sir. Can you talk more about Vinod sir? Like what all things you gained from him? Because since he was a first coach, Yeah. he would have been the first very mentor of your life as well. Correct. Who was helping you throughout to navigate your way into cricket, right? Can you talk to me about the lessons that man has provided you? किनी सर के बारे में मैं बोलूँ तो बेसिकली ही वॉज लाइक टू द एंटायर ग्रुप, नॉट जस्ट टू मी बट टू द एंटायर ग्रुप ऑफ 15 बॉयज़ ही वॉज लाइक अ फादर फिगर. बिकॉज उस टाइम पे नाउ इट्स बिकम लाइक अ ठीक है कोच है ये है वो है बट उस टाइम पे हम लोग ऐसे मतलब बेसिकली वी यूज टू गो फॉर प्रैक्टिस एट 3:30 4 o'clock और कभी कभी वी यूज टू कम बैक फ्रॉम प्रैक्टिस एट 8:30 इन द नाइट. तो उतना टाइम हम उनके साथ ही स्पेंड करते थे. एंड इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट. ऐसे नहीं था कि वो सिर्फ हमें बैटिंग सिखा रहे या बॉलिंग सिखा रहे. इट वॉज यू नो द वे ही स्पोक एंड द थिंग्स दैट ही टॉट अस. इट वॉज अबाउट लाइफ, हाउ डिसिप्लिन्ड यू हैव टू बी, पंक्चुअलिटी, लॉट ऑफ स्टफ. एंड बेसिकली वैसे मतलब हम लोग अभी भी उनसे थोड़ा बहुत डरते क्योंकि यू नो वो हार्ड वायर हो गया माइंड में कि किनी सर इज़ लाइक स्ट्रिक्ट. तो अभी वो शांत हो गए रहेंगे ना तो भी हम अभी भी लाइक यू नो वी हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, दैट काइंड ऑफ फियर कि किनी सर अभी भी हमको दिखेंगे तो हम लोग थोड़े ऐसे ये हो जाते कि अरे किनी सर. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ यू नो इमेज दैट मैन हैज़ यू नो इन आवर लाइव्स. बट यू नो like I said, very disciplined, very punctual. अभी भी हमें याद है लाइक हम लोग ग्राउंड के 3-3 4-4 राउंड मराएंगे हम लोग को, फिर उसके बाद स्प्रिंट्स इतने भागने लगाएंगे एंड देन इवन इफ यू यूज टू गेट टायर्ड यूज टू बी लाइक दिस यू नो दीज थिंग्स विल हेल्प यू eventually. Not just in cricket but in life. So that is something. And specifically Kini sir has a big role in why I am still playing cricket is because there was a time where I had to choose between medical and basically studies and cricket. And he came home and he talked to my parents. He convinced them कि you know इसको 1-2 साल दे दो, अगर इसने नहीं किया 1-2 साल में तो आप उसको पढ़ाई के लिए जो भी आप उसका क्रिकेट छुड़वा देना बट उसको 2 साल दो. एंड आई थिंक मे बी इफ ही वुडंट हैव कम होम तो शायद मैं क्रिकेट खेल भी नहीं मतलब खेलता भी नहीं. सो आई थिंक दैट इज़ वाई यू नो ही होल्ड्स दैट पोजिशन इन माई लाइफ
that he has impacted my life in that way. Beautiful. You've played in IPL. You've played for Delhi Daredevils, and right now you're playing for Bombay, for Yeah. Mumbai. What kind of pressure do you feel as a player when you're playing an IPL, and what kind of pressure do you feel as a player when you're playing? Can I put the Bombay team into domestic cricket's category? Yeah, it is Okay. domestic. Yeah. So what's the difference there when it comes to the pressure that you feel on the field as a bowler? Pressure remains the same. I feel the only difference would be, see, cricket doesn't change. बैट वही है, बॉल वही है, डिलीवरीज वही डालनी है, फील्डिंग वही करना है. The only thing that changes is exposure and the crowd. Because of the exposure, because of the crowd, वो nervousness kick in होता है. Now again, when I was part of the Delhi Daredevils, IPL was completely different to what it is now. Now it has become very professional. उस time पे it was just the start of the IPL. So things were a little different from what they are today. उस time पे IPL was more about the stars playing the league. Now it is about young players playing the league and try to play for India. Okay. So there has been a shift in how the IPL functions. But if you ask me about pressure, तो यही है कि as players we are expecting that kind of a pressure when you're playing a big league. But it's more about the crowd, and I think it's just a matter of 1 or 2 games. First couple of games में you will feel the pressure, but eventually you just get used to it. Like, और वो change नहीं होता. Even when you're playing for Mumbai, पहले 1-2 मैच में, इनफैक्ट मुंबई के लिए तो हर मैच में there is immense pressure because of the kind of competition that is there in Mumbai. Like when it comes to players Yeah, in team. yeah. Okay. कंपटीशन जो टीम में 15 में कंपटीशन है वो तो अलग ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट इज देयर इन द क्लब सर्किट, लाइक हाउ आई टोल्ड यू देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग. सो कि आप मुंबई के लिए खेल रहे हो, बट you don't know when you're going to get dropped. That is the kind of pressure. You're never settled in the team basically. ऐसे होता है कि I mean दूसरे स्टेट्स में भी सेम ही होता होगा, but just because Mumbai has that kind of a legacy behind itself, तो क्या होता है कि you're under constant pressure to perform. Like 1 या 2 bad games, not even bad games, half decent games, आप कभी भी टीम से ड्रॉप हो सकते हो. Because there are players sitting out there who are better than you. Hundreds of players. आप every weekend there's a A division game in Bombay. Every weekend some other player has performed. आपको पता है कि your days are numbered over here. अगर आपने अच्छा नहीं किया, कोई दूसरा आपको रिप्लेस कर देगा. तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द क्राउड का प्रेशर, just playing state games for Bombay, I think it's the similar kind of pressure to playing IPL. There's no difference, and that is why players from Mumbai, when they play the IPL, उनको ज़्यादा difference feel नहीं होता. Like there's no nerves. Like अभी आयुष मात्रे को ही देख लीजिए आप, 17-18-year-old kid plays for CSK. ऐसे लगा ही नहीं कि he was not part of the IPL ever. आया first game से he's doing well. That is because you come through the ranks in Mumbai in such a way that you get like mentally very strong. Yeah. Okay. In the domestic games, so you are in Mumbai team, right? Yeah. And in IPL, you were in Delhi Daredevils, right? You've experienced both sides of the coin, all right? As a player, how do you mentally and physically prepare yourself for the game? What is the process? And when I ask you how do you mentally prepare yourself and physically prepare yourself, it is how do you prepare yourself for the pressure, and to tackle the pressure, what is your what is that thought going on in your mind whenever you are about to bowl or when you're on the field? And physical, when I ask you how do you prepare yourself physically, it's because I think
to be a better player, you have to be physically fit. Correct. And that is the new trend that's going on now. Correct. I would say that's something players should have picked up uh, at a very early age of India getting into cricket. Yeah. But ये अभी से बहुत ज़्यादा we are seeing Correct. after players like Virat Kohli. So how do you prepare yourself mentally and physically to tackle the pressure that you face on the field? I feel कि they both go hand in hand. First thing तो ये है कि if you're not physically fit, तो mentally आप pressure feel करोगे. That is the first thing. Because if you're not, basically it's like a test. आप टेस्ट में अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो आप टेस्ट में प्रेशर फील करने वाले हो. Correct. So it's that sort of a thing where if you're physically fit, तो automatically the mental side of it gets sorted. मैं sorted as in pressure तो रहेगा, but you're basically आपके दिमाग में ऐसे होता है कि I'm prepared for this this situation. So physical fitness is like उधर कुछ compromise ही नहीं. Like you have to be physically fit. Having said that, physical fitness, I feel, yes, we idolize Virat Kohli. We idolize, say, take any say Mitchell Stark for that matter. Supreme fitness, Trent Bolt, supreme fitness. But cricketing fitness and just being fit is completely different. So I feel all these players that we talk about are cricketing fit. मोर देन जस्ट फिजिकली फिट. क्योंकि ऐसे होता है कि आप जिम कर सकते हो, स्ट्रेंथ वर्क कर सकते हो, यू कैन डू योर रनिंग, बट एक्चुअल जो क्रिकेटिंग ग्राउंड वर्क जो होता है उसमें जो मसल्स यूज होते हैं, दोज विल ओनली से फायर इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट. Okay. So that is a different kind of fitness. Say for fast bowlers, for example, no matter how, मतलब कितना भी आप जिम कर लो, कितना भी आप रनिंग कर लो, लेकिन जब तक आप बॉलिंग नहीं कर रहे हो आपको सोरनेस फील होगा. दैट इज़ बिकॉज the muscles that get fired during bowling are completely different from the muscles that we use in the gym or say for running. So obviously gym and running is important, but they are just complementary, basically complementing the bowling muscles. तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ती है. मतलब वो मैंडेटरी हो गया अभी कि क्रिकेट में इफ़ यू वांट टू प्ले क्रिकेट, फिजिकल फिटनेस इज मैंडेटरी. करेक्ट. तो वहाँ पे प्रेप का बात, इट्स नॉट अबाउट हाउ डू यू वांट टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर अ गेम. बेसिकली ऐसे है कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको फिजिकली प्रिपेयर आपको खुद को करना ही है. आप पर्सनल ट्रेनर रखो, यू बोल, यू बैट. That is the physical part of it. Then comes the mental part, and I feel mentally, basically we keep saying this in our team meetings that cricket is 70% a mental game. सबको ऐसे लगता है कि physical game है, lot of movement, ये वो. But I feel yeah, a lot of cricketers will tell you this कि cricket is 70 to 80% a mental game. Because physical fitness, everyone is at par with each other. Like ऐसे नहीं होता कि at a certain level, obviously, if you're playing domestic or if you're playing the IPL, तो सब लोग एक certain level of fitness लेके ही टीम में आते हैं. If you're not fit, तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे. अब बात ये होता है कि if two people are physically same, तो how will the other player outperform, मतलब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को आउट परफॉर्म कैसे करेगा. सो दैट इज़ वेयर द मेंटल पार्ट किक्स इन. हाउ काम यू कैन बी इन प्रेशर सिचुएशंस. लाइक आई टोल्ड यू, क्राउड के सामने कितना आप काम रह सकते हो. आप विराट कोहली की बात करते हो. विराट कोहली ने जो पाकिस्तान के सामने दैट 6 इन द वर्ल्ड कप, वी वन दैट गेम. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम विथ practice, mental practice, and that can be different for different players. Some players, they like to focus a lot before a game. Say game के पहले they will not talk to anyone. अपने रूम में जाके विजुअलाइज करेंगे,
वीडियोस देखेंगे. बेसिकली उनका एक दिन पहले बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है. और कुछ प्लेयर्स ऐसे रहते हैं who like to be a little chilled out. So that is, I think that depends individual to individual कैसे, what works for you basically. So in my case, I feel there was a time where I used to get really nervous before games because मुझे ऐसे रहने का कि अगले दिन अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, लॉट ऑफ थॉट्स कि मैं अच्छा करूँगा कि नहीं, अगर अच्छा नहीं किया तो टीम से ड्रॉप हो जाऊँगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते थे. और उसमें आई फेल्ट कि आई वॉज लिमिटिंग माई सेल्फ. मेरे परफॉर्मेंसेज में वो ग्रोथ नहीं था. लेटर आई रियलाइज, आई वर्क विद साइकोलॉजिस्ट, हम लोग की टीम में ही थी, और आई वर्क विथ हर, डिस्कस स्टफ विथ हर, and eventually I realized that the more chilled out I am before the game, obviously focused but still chilled out, like not thinking too much about the game. आप गेम के एक दिन पहले आपने आपका प्लान्स डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट्स इट. देन यू डोंट थिंक अबाउट क्रिकेट अगेन. जब आप सुबह में उठोगे, यू आर रेडी. So obviously that came with practice, didn't happen overnight, but yeah, so basically that is the thing. You have to sort of work out a way जहाँ पे you're the most comfortable on game day. So I think that is different for different players, but yeah, that is how it is. You just mentioned that let's say if there are two players, both the players have similar physique, they both are capable to do things which other player cannot. Yeah. But what sets them apart is the mentality. So what's your mentality when you are bowling? So let's say you are in a very like you are in a situation where you have a lot of pressure, Yeah. and you have to either take wickets or you have to make sure that the over is a maiden. Yeah. All right. What is your mentality then? Like, what do you visualize? What do you do? Yeah. So पहले, like I told you, it was different a few years back. A few years back in this situation, I would have been a little nervous. Nervousness तो अभी भी होता है, but तभी that nervousness would take over. बेसिकली ऐसे होता था कि उस नर्वसनेस में आई यूज टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर नॉट इन माई कंट्रोल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई टोल्ड यू कि अगर मेरा ये ओवर अच्छा नहीं हुआ, या इफ़ आई कांट गेट द जॉब डन फॉर द टीम, तो मेरा टीम में पोजिशन क्या होगा. थिंग्स दैट आर नॉट इन माई कंट्रोल बेसिकली. आफ्टर वर्किंग ऑन द मेंटल साइड ऑफ इट, बेसिकली ऐसे हो गया कि अगर अभी ऐसे सिचुएशन में मुझे बॉलिंग करना पड़ रहा है या जो भी है मैच का सिचुएशन, फर्स्ट थिंग इज आई थिंक आई वॉच द गेम क्लोजली. लाइक इवन व्हेन से अनदर बॉलर इज बॉलिंग, तो विच बॉल्स आर वर्किंग फॉर हिम, दैट इज बेसिकली रीडिंग द गेम. तो आप इतना गेम में इन्वॉल्व रहना चाहते हो कि यू हैव टू वॉच विच बॉल्स आर वर्किंग एक बॉलर के फेवर में. कैन यू बोल दैट पर्टिकुलर बॉल? That is the second question. Thirdly, I feel जब भी मुझे बॉलिंग आएगी तभी क्या सिचुएशन हो सकता है गेम का. सो बेसिकली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन 3 to 4 overs बिफोर दैट सिचुएशन. दैट इज़ हाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड. सो नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट कि ये सिचुएशन मुझे आ सकता है, रादर देन थिंकिंग कि अरे अब मैं ये सिचुएशन में आ गया हूँ. Okay. सो दैट गिव्स मी दैट एक्स्ट्रा 5 to 10 minutes की ओके मैं ये सिचुएशन में आ सकता हूँ. मैच का बेसिकली ये फ्लो है, ये फ्लो में ये सिचुएशन में मुझे बॉलिंग आ सकती है. अगर ये सिचुएशन में बॉलिंग आई, वर्स्ट सिनेरियो, तो फिर मैं उसमें मेरा बेस्ट बॉल्स क्या है जो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. आई थिंक अबाउट दोज बॉल्स, द फील्ड सेट. वंस आई एम लाइक एट द टॉप ऑफ माई मार्क, देन आई डिसाइड कि ये मुझे ये बॉल डालना है, एंड दैट इज़ इट, लाइक स्विच ऑफ. Because at the point of say when you're going to bowl, if you have 2-3 thoughts in your head, तो जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो आप नहीं करोगे. Correct. वो होगा ही नहीं बेसिकली. नो मैटर हाउ गुड अ बॉलर यू आर, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहेंगे, बट इफ़ यू हैव 2 to 3 थॉट्स इन योर हेड तो नहीं होने वाला है. इनफैक्ट आई हैड द चांस टू वर्क विथ ग्लेन मैकग्राथ व्हेन आई वाज एट द MRF Pace Foundation. So he told me this. He was like, when you're at the top of your mark, it might be a bad decision. Like तूने जो बॉल सोचा है वो गलत भी होगा,
बट वंस यू मेड योर डिसीजन, यू मेड योर डिसीजन. Just stick उसके to it. बाद Yeah. देन यू स्टिक टू इट. देन यू डोंट थिंक हाफ वे थ्रू योर रन अप कि अरे मैं ये करूँ क्या, वो करूँ क्या. अगर तूने डिसाइड किया है, तू वो बॉल डाल. वो बॉल डालने के बाद अगर तुझे छक्का भी पड़ गया तो कोई बात नहीं. सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव पिक्ड फ्रॉम हिम, एंड इट जनरली वर्क्स. लाइक इफ यू आर prepared well as in if you have practiced a certain delivery well, तो फिर मैच में 9 times out of 10 you will execute those deliveries if you are like clear in your head. So I think that shift of say thinking about uncontrollables to thinking about what is in your control, that is something that has helped me a lot. I want to talk about the setbacks that you faced Yeah. over the time. Can you talk more about it? Can you be more vocal about the failures that you have dealt with throughout your journey? Yeah, I feel as an athlete, everyone goes through failures. पहली बात तो ये. In my case, I feel failures ज़्यादा थे success से ज़्यादा. But yeah, like how I told you कि I wasn't a natural talent. एक जैसे होता है कि you know starting से ही एक बच्चा दिख जाता है कि ये खेलने वाला है. I wasn't in that category. Right from day one, people have my dad जब भी मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए आते थे तो उनको कितने जन ने बोला है कि क्रिकेट बस हो गया, नहीं खेलने वाला है आगे, इसका कुछ नहीं हो सकता. I got dropped, like I told you, from the Vasai center. I was dropped. Reasons I don't really discuss those, but I feel it was a little unfair for a 17-year-old kid. उसके ऊपर इतना harsh ये करना. मतलब all basically I think till I played the Ranji Trophy, people didn't see me as a cricketer. उनके लिए ऐसे था कि अरे ये क्यों ही खेल रहा है. और I won't say they are wrong, because ऐसे होता है कि when you're playing for Mumbai, like basically मुंबई में आप जब भी क्लब क्रिकेट खेल रहे हो तो टैलेंट इतना है कि if you are not supremely talented ना, तो people just think कि अरे इसको क्यों कंसिडर करें हम, because they want the cream of the crop. Correct. So I feel that was my first setback कि I had to work my you know मतलब बेसिकली ऐसे था कि एवरी स्टेप ऑफ द वे आई हैड टू वर्क हार्डर देन एनी अदर नेचुरली टैलेंटेड क्रिकेटर. आई हैड टू लर्न एवरी स्किल, छोटे छोटी चीज़ें, फील्डिंग का स्किल. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फील्डिंग नेचुरल होता है, वो मेरे पास नहीं था. बॉलिंग स्ट्रेंथ वाइज आई वॉज इन देयर, सो आई हैड टू वर्क हार्ड. बैटिंग का स्किल, जो भी है, basically whatever I am right now, I have learned throughout the journey. It is not something that has been God gifted to me कि अरे ये था इसके पास. The only thing that I had कि मैं भाग के बॉल डाल सकता था बस. उसके आगे जो भी था, I have had to work on every skill to reach where I am right now. उसके बाद I feel setback was ये सब करने के बाद when I got picked for the Ranji Trophy. And there was this game against Baroda, 500 game, मुंबई का 500 गेम था वो रणजी ट्रॉफी गेम. एंड एंड ऑफ द डे, फर्स्ट डे के एंड पे आई बोल्ड अराउंड 4 to 5 overs, और उस टीम में शार्दुल था, धवल भाई थे, और मैं खेल रहा था. एंड आई वॉज बॉलिंग सो वेल कि ऐसे लग रहा था लाइक दिस इज़ द मोमेंट कि यहाँ पे अगर मैं अच्छा कर गया तो यू नो यू आर प्लेइंग इंडिया. मतलब वैसे थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में कि एक लेवल ऊपर खेलूंगा. नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब उस इवनिंग पे मुझे इतने कॉल्स, हो यू डूइंग वेल, ये वो ऐसे वैसे, कंटिन्यू ऐसा ये वो. नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फर्स्ट ओवर, 4th ball, आई टेयर माई हैमस्ट्रिंग, आई एम आउट फॉर 3 months. द एंटायर सीजन इज गॉन. अगेन फ्रॉम ज़ीरो, यू नो, स्टार्ट करके वापस, you know, get back in the team, and then basically journey zero से start हो जाता है, because someone else is going to replace you. तो फिर वो अच्छा कर रहे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा for your own opportunity.
So I've had a couple of injuries. इतना नहीं, like just 3 injuries in 12 years. But I feel कि वो injuries उस time पे है जब भी I was at my best. Pec muscle tear हो गया, just post COVID. Fitness wise, that is why I keep telling कि fitness is not about gym and running. Because मैं इतना कोविड के वो 6 महीने में मैंने इतना ट्रेनिंग कर लिया कि ओवर यूज़ हो गया बॉडी. एंड अचानक वी वर टोल्ड कि क्रिकेट इज़ ओपनिंग अप अगेन. दिस वाज पोस्ट कोविड. तो सिलेक्शन मैचेस है तो आ जाओ. तो मैं चले गया और एवरीवन इज़ लाइक अरे क्या बॉडी बना लिया यार, क्या बॉडी है, ये वो है. पहले ओवर के 3rd बॉल पे पेक मसल टेयर. आई गेस ये आईपीएल के बाद हुआ था ना? When you were in IPL, your नहीं, physique नहीं, was not. This was 2021. 21. Yeah. And you played IPL in 2017. 13. 2013. 13. Yeah. Okay, long time back. Yeah. Okay. So that is इसके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पुराना तभी चावल. start हुआ था, yes. और तभी पूरा. IPL start हुआ था. हाँ, It was very this, new. fifth year of IPL, no? 2008 में start हुआ. Yes. 2013 I was part of the team. How old were you when you 19. played? 19. Yeah. Okay, continue. Yeah. Yeah. So yeah, and the third injury was the other hamstring tear. वो अभी इस साल हुआ, मतलब start of this season. But I feel कि this season के start में वो जो injury हुआ, like that in itself is a story because ये season के start में I was not at my physical best. वहाँ से hamstring tear होता है ड्यूरिंग फिटनेस टेस्ट ले रहे थे हम लोग के ऑफ सीजन कैंप के, और उसमें मेरा हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया. ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक क्रिकेटिंग करियर एटलीस्ट फॉर मुंबई इज़ ओवर. ईरानी ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला, रणजी ट्रॉफी के पहले 2 गेम में खेलने का मौका नहीं मिला. तो मेंटली यू गेट वेरी लाइक ऐसे लगता है कि हैव यू इवन मेड द राइट चॉइस प्लेइंग क्रिकेट. Correct. To come back from there and have one of your best seasons, like playing the Mustaq Ali finals, getting a couple of wickets there, getting your first 5-wicket haul this season. ये सब एक ही साल में हो गया, मतलब from the lowest of lows to the highest of highs एक साल में हो गया. So that is how cricket is, like it's very volatile. How do you deal with the self-doubt that you create as a player? Yeah. After having such injuries? Number 1 question. And number 2, how do you deal with the frustration that comes along with it? That, fuck man, I have to start all over again now. Yeah. Right? First, the frustration kicks in, and after frustration, self-doubt kicks in. That, should I be doing this again? Correct. Should I go through this process again? Would I be as good as I was? You have then hundreds of questions coming in. So how did you dealt with 2 of these elements? And of course you've like faced it. Yeah. You faced that rock bottom. How did you dealt with them? थोड़ा उसका basically if I tell you a little back story of this entire frustration and self doubt part. 2021, basically after the pec muscle tear, I was honestly thinking about कि continue करना है कि नहीं, because COVID, see when you're playing cricket, तो basically in that age of 26 to 30 you want to play maximum games because that is your peak period as they say. अभी peak period थोड़ा आगे निकल गया है because with the fitness and everything. पहले ऐसे था कि 33-34 में लोग रिटायर हो जाते थे, अभी 36-37 people are playing till 40. ठीक है, बट कोविड में 27 to 30 वाला वो जो फेज था ना, वो मेरा ऑलमोस्ट निकल गया. Correct. सो एंड राइट आफ्टर दैट आई वाज 29, मतलब बेसिकली मेरा 30th बर्थडे नहीं हुआ था बट 29 था. सो उसी टाइम पे पेक मसल टेयर हो जाता है. जब वो टेयर हुआ तभी आई वाज लिटरली कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द फैक्ट कि अरे यार अभी खेलना भी है कि छोड़ दूँ, बिकॉज योर इन योर हेड यू थिंक कि आपका पीक पीरियड जा रहा है एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. बेसिकली ऐसे है कि यू आर नॉट इवन मेकिंग मनी आउट ऑफ क्रिकेट. Correct.
आप उसमें आगे भी नहीं जा रहे हो, और बिकॉज इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग आप कुछ और कर भी नहीं पा रहे हो. दैट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट फेजेस फॉर मी एज अ क्रिकेटर, क्योंकि उससे पहले प्री कोविड आई हैड एज इन माई हैंड. तो उस वजह से क्या होता है, सी एवरी फास्ट बॉलर गोज थ्रू इंजरीज. ऐसे नहीं है, यू वोंट हैव एनी फास्ट बॉलर से कि मैं कभी इंजर्ड ही नहीं हुआ. सब फास्ट बॉलर्स को कुछ ना कुछ निगल्स इंजरीज होते ही है. बट व्हेन यू हैव एज इन योर हैंड्स ना, तो आप उस बारे में उतना नहीं सोचते हो. सी इफ़ यू गेट एन इंजरी एट 22-23, आपके पास वो टाइम है. आप ये सोचते हो कि ठीक है, 1 साल मेरा वेस्ट हो गया तो भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, अगले साल फिर ट्राई करेंगे. बट इफ़ यू गेट इंजर्ड एट से 29-30 एंड एन इंजरी लाइक अ पेक मसल, मेजर इंजरी बेसिकली पेक मसल और हैमस्ट्रिंग, जहाँ पे आपके 6-7 महीने जाने वाले, तो आप यू रियली स्टार्ट टू थिंक कि यू नो हैव आई मेड द राइट डिसीजन. करेक्ट. तो दैट वाज अ वेरी टफ फेज फॉर मी. लकीली फॉर मी, पेक मसल टेयर होने के बाद सेकेंड वेव ऑफ कोविड केम, सेकेंड और थर्ड वेव ऑफ कोविड केम, एंड आई गॉट दो 6 months जहाँ पे क्रिकेट हुआ ही नहीं. तो उस वजह से क्या हुआ कि वो इंजरी किसी के नज़र में नहीं आया. दैट पेक मसल टेयर विच इज़ अ मेजर इंजरी एज अ फास्ट बॉलर, किसी के नज़र में नहीं आया क्योंकि क्रिकेट ही नहीं हुआ. बट उस टाइम पे आई वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट. उसके बाद आई डिड मेक अ कम बैक, मुंबई की टीम में आया, बट आई वॉजंट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू प्ले बिकॉज मुंबई हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी लाइक स्टफ्ड साइड in terms of फास्ट बॉलर्स हो गया, बैट्समैन हो गया, सब इंडिया खेले हुए, मतलब इंडिया ही खेले हैं सब लोग. मतलब से धवल कुलकर्णी था उस टाइम पे, शार्दुल था, तुषार था, देश पांडे, मोहित था और मैं था. तो इन पाँचों में टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एक मैच मिलना भी इज़ लाइक अरे मुझे खेलने मिल रहा है, ऐसे हो रहा है. और उसमें आप ये सोच रहे हो कि अरे मैं इंजर्ड हो गया, अभी कब चांस मिलेगा, ये हो गया. वो पूरा सीज़न आई डिडंट प्ले 1 game. उसके अगले सीज़न वापस क्लब में परफॉर्म करके केम बैक इन द टीम, अगेन डिड नॉट गेट अ सिंगल गेम टू प्ले. तो वो 22 बेसिकली 21-22 सीज़न, 22-23 सीज़न, ये जो सीजन्स थे दोनों, इसमें आई वाज थिंकिंग कि शुड आई इवन कंटिन्यू. उस बीच में ट्रेनिंग का मेरा, बिकॉज यू आर सो लाइक मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, you can't focus on cricket when you are like rock bottom. तो बेसिकली टीम में होने के बाद भी आई wasn't training because I was so like, उस टाइम पे अगर आप मुझे देखते ना तो आप देख के ही पता चल जाता था कि यार ये डार्क सर्कल्स हुए, वज़न बढ़ गया है, बाल बिखरे हुए, ऐसे मतलब वेरी वेरी बैड स्टेट बेसिकली मेंटली. तो उस टाइम पे आई फील, not just for me but for any other player, I feel you need people around you you can talk to, because if you don't have people around you with whom you can discuss what you're feeling inside, so it gets very difficult. And you can't talk to your family. I feel you can talk to them but you don't want to put that pressure अपने मॉम डैड पे. आपको वो प्रेशर नहीं डालना कि अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा क्रिकेट में, क्योंकि वो आपको बहुत उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है. तो वो आपको ये स्ट्रेस में देख नहीं सकते, तो वो आपको बोलेंगे एक काम कर, तो छोड़ दे, कुछ और कर लेते, इंस्टेड ऑफ सीइंग यू इन सो मच स्ट्रेस. यू कांट टॉक टू योर फ्रेंड्स मतलब ऐसे ही जो फ्रेंड्स हैं आपके नॉर्मल, उनसे आप बात नहीं कर सकते बिकॉज वो समझ नहीं पाएंगे द लेवल एट विच यू आर. उनके बहुत डिफिकल्ट है उनको ये समझना. You need someone in the circuit who will come and talk to you, जिससे आप बिंदास जाके बात कर सकते हो कि भाई ये देख मेरे को ऐसे लग रहा है, and he'll give you the right advice. He'll give you the right advice. When I say right advice, it doesn't have to be the most क्या बोलते हैं, बेसिकली आपको जो सुनना है वो नहीं बोलेगा, वो जो सही है वो बोलेगा. करेक्ट. एंड आई फेल्ट कि उस टाइम पे आर ट्रेनर, हम लोग का रणजी ट्रॉफी का ट्रेनर जो 3-4 साल से, विशाल चित्रकार, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ क्रिकेटर.
and then he got into, you know, the training part of it. We have played together. तो उस सिचुएशन में बिकॉज आई वॉजेंट प्लेइंग एंड आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ हिम, यू नो, मैच के बाद. तो ही सॉ कि भाई ये सही नहीं लग रहा है, मतलब यू नो फिजिकल अपीयरेंस पे ही बंदा बहुत डाउन है. आई हैड अ वर्ड विथ हिम एंड वी डिस्कस्ड, लाइक आई टोल्ड यू, थिंग्स कि मतलब कैसे, यू नो, हाउ वी कैन टेक थिंग्स फ्रॉम योर द मेंटल पार्ट ऑफ इट, क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, ये सब चीज़ें. एंड फ्रॉम देयर दैट कम बैक बेसिकली स्टार्टेड. सो फ्रॉम हिटिंग रॉक बॉटम, like I told you, you need that one person who will, you know, you can just go and say कि बाबा ये देख मेरे को ऐसे लग रहा है, and he'll give you the right advice. And at that point I feel, मतलब पूरा डिस्कशन तो नहीं बोल सकता, बट बेसिकली अगर समराइज करने जाएगा तो ही सेड कि जो तेरे कंट्रोल में है वो कर, गिव योर सेल्फ अ ईयर, वर्क टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स. इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अप, you work for a year and see कि कुछ होता है कि नहीं. And from there we sort of, you know, came back. One thing I've seen in sportsmen's life is that they end up sacrificing a lot of things to be something and to be someone in their particular field. All right, you must have sacrificed on a lot of things too, especially when you are playing Ranji, क्योंकि रणजी के टाइम पे प्लेयर्स दे ट्रैवल अ लॉट. कैन यू टॉक अबाउट द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव, कैन यू टॉक अबाउट द इवेंट्स दैट यू हैव मिस्ड इन योर फैमिली, यू नो? सी 18 years of age में मैंने बेसिकली घर छोड़ा है. अगर फॉर दैट मैटर इफ मतलब घर छोड़ने की बात करेंगे तो आई वॉज पार्ट ऑफ द MRFPS फाउंडेशन. सो उसके लिए आई हैड टू बेसिकली गो टू चेन्नई. 18 में आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देयर. सो सैक्रिफाइसेस तो तब से ही स्टार्ट हो गए. रणजी ट्रॉफी तो मैं बहुत बाद में खेला हूँ उसके, बट यू नो व्हेन यू डिसाइड ऑन टेकिंग क्रिकेट और फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट एज अ करियर, तो योर फैमिली लाइफ ऑब्वियसली टेक्स अ बैक सीट. और इस चीज़ का एक्सेप्टेंस सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी करना पड़ता है, क्योंकि आप तो कर लोगे क्योंकि आपका करियर है, बट से योर मॉम, डैड, योर सिबलिंग्स, जो भी है, अभी शादी होने के बाद योर वाइफ, इनको उस चीज़ का एक्सेप्टेंस आने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है. एंड इवेंचुअली आ जाता है, बट दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग सैक्रिफाइस बिकॉज आई एम नेवर होम फॉर एनी फैमिली इवेंट्स. किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, तो मैं तो घर पे रहता ही नहीं हूँ. आई हैवेंट सेलिब्रेटेड माई ओन बर्थडे एट होम फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स. एक आध साल अगर बीच में मैं सेलिब्रेट कर देता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि अरे फाइनली ये घर पे. सो ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आती ही है. लाइक विद स्पोर्ट्स, दीज सैक्रिफाइसेस everyone has to go through. For that matter, when my dad was battling cancer, I wasn't there for him. When he passed away, I was playing the Vijay Hazare Trophy. तो मैं वहाँ से लिटरली बेसिकली पूरा फैमिली घर पे था और मैं नहीं था. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें, आई थिंक एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इवेंचुअली गोज थ्रू दीज थिंग्स, एंड आई मीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ what we do. तो उस चीज़ का जितना एक्सेप्टेंस जल्दी आएगा उतना अच्छा है. या My favorite player when it comes to cricket, of course, Virat Kohli, because I like that person, his mindset. I have learned quite a lot of things from him, even if I'm not into cricket, but I apply those things in my life, which helps me at times. Who is your favorite player in cricket? My favorite player, like I said, obviously लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो जैक भाई, ज़हीर खान. वो तो इंडिया में लाइक अगर सचिन तेंदुलकर बैटिंग में गॉड है तो फास्ट बॉलिंग में ज़हीर भाई इज़ एट द सेम लेवल. तो वो तो सबके ही फेवरेट होते हैं.
Then obviously I follow a lot of bowling from Wasim Akram, Brett Lee. ये सारे तो मतलब सभी लड़के फॉलो करते हैं बिकॉज दे आर लाइक लेजेंड्स ऑफ द गेम. बट वन पर्टिकुलर पर्सन जिनका मैं एज अ पर्सन फैन हूँ मोर देन अ क्रिकेटर इज़ आशीष नेहरा. बिकॉज Ashupa was part of the Delhi Daredevils team when I was in it. And what I realized is, again, not a very natural cricketer, जो natural athlete जो बोलते हैं ना, वैसे नहीं थे वो. But even after so many injuries, I think he has had some 17 surgeries throughout his career. 17 सर्जरी के बाद इतना लंबा करियर, ये तो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट हो गया. बट अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप रियलाइज़ ही नहीं करोगे कि आप इतने बड़े प्लेयर से बात कर रहे हो. आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ स्पेशल अबाउट आशुपा. लाइक आप उनको कभी भी मिलो, वेरी अप्रोचेबल, बिंदास आपसे बात करेंगे, बॉलिंग के बारे में इंसाइट देंगे, शेयर करेंगे, नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग, आपको एकदम हैप्पी स्पेस में रखेंगे. सो आई थिंक यू नो if I'd look up to someone in the cricketing circuit, so it would be Ashish Nehra, just as a human being more than a cricketer. प्लस पॉइंट ये है कि वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, तो ऑब्वियसली उनको मैं फॉलो करता ही हूँ. Similarities. Yeah. Have you exchanged conversations with him in the dressing room? Yes, quite a few times. तभी थोड़ा सा मैं शाय होता था. मे बी नाउ लाइक इफ आई वुड हैव मेट हिम तो वो कन्वर्सेशन थोड़ा ओपन हो जाता. उस टाइम पे इट वाज प्योरली क्रिकेटिंग कन्वर्सेशंस, क्योंकि 18-19 साल का बच्चा थोड़ा शाय, बात करने से डर रहा है. बट जो भी है, मतलब जितनी भी मेरी उनसे बातें हुई है, इट्स ऑलवेज बिन वेरी प्रोडक्टिव बेसिकली. Have you learned something from him, like his advice, any of his advice to you as a bowler, since you shared very similar, like since you guys are so similar when it comes to bowling, you both are left hand fast paced bowlers. तो उनकी कोई एडवाइस है जो आपको काम आए? मैं उनका एडवाइस से ज़्यादा मैं उनका प्रेप देखता था. जब भी वो दिल्ली डेयरडेविल्स की कैंप में जब भी वो प्रिपेयर कर रहे थे, उस टाइम पे लाइक 2013 में ही हैड प्लेड डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनली एज वेल. बट तभी भी what I picked on was वो दिल्ली के कैंप में आए थे and he was fixing his jump, जो उनका बॉलिंग का जंप है वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे. तो मैंने बेसिकली वो उस टाइम पे वो सोचा कि अरे यार, ये आदमी इतना क्रिकेट खेल चुका है और अभी भी ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. ही हैज़ नथिंग टू प्रूव टू एनीवन. करेक्ट. ही इज़ ऑलरेडी देयर. उनको उनके स्किल के बारे में नॉलेज है, वो अच्छा भी कर रहे हैं एट द इंटरनेशनल लेवल. और तभी भी प्रैक्टिस में आके वो अपना जंप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो आप एक 25, 26, 27 की उम्र में आप टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में उतना नहीं सोचते. सो दैट इज़ समथिंग दैट रिमेन्ड विद मी. लाइक अभी इतना 10-12 साल के बाद भी मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. सो दैट हैज स्टक विद मी कि you are never basically you shouldn't stop learning as a cricketer. Every day you're going to find something which you can improve. Okay. My next question is similar to one of the questions we've talked about. Yeah. That was, how do you train yourself physically and mentally? So I do mixed martial arts, as I mentioned. Okay. Yeah. तो हमें एक word होता है which we practice, like it is something we do, so called conditioning. Alright. So conditioning is basically like I am into kickboxing and jiu-jitsu and like different forms of mixed martial arts. So conditioning में basically you strengthen your punches, your kicks and all your techniques by doing it again and again. And punches में the more hits you take, the more hard your knuckles becomes. Correct. Alright. So I want to ask a question with the perspective of how do you mentally condition yourself to deal with the pressure, and no matter what's going on in the game, you still come out with bright colors. How do you condition yourself mentally?
I think it comes down to how much pressure you put yourself in the nets. Like you said कि आप जितने पंचेस प्रैक्टिस में मारोगे उतने नकल आपके स्ट्रॉन्ग होते. तो फॉर अस एज bowlers, how much pressure situation are we putting ourselves into in the nets? It's easy to come in the nets and bowl. बॉलिंग कर रहे, अपना काम कर रहे, निकल जा रहे. बट से फॉर एग्जांपल अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है तो आप उसको आउट करने का कोशिश कर रहे हो क्या नेट्स में आउट करने का कोशिश कर रहे हो क्या, आप उसके अगेंस्ट क्या प्लान कर रहे हो. आर यू पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ सिचुएशन से इन T20 क्रिकेट, अगर इफ आई एम बॉलिंग द 20th ओवर एंड आई हैव टू से डिफेंड 10 runs, तो यू हैव टू बेसिकली एम आई सेइंग इट आउट लाउड टू द बैट्समैन कि भाई देख 6 बॉल में 10 रन है, तू मारने का कोशिश कर, मैं बचाने का कोशिश करूँगा, डिफेंड करने का कोशिश करूँगा. ये सारी चीज़ें व्हेन यू डू इट इन द नेट्स, तो मैच सिचुएशन में इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पुट योर सेल्फ अंडर सो मच प्रेशर नेट्स में कि मैच फील्स लाइक ठीक है. ऑब्वियसली मैच इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल इन द नेट्स, तो मैच में इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर टू लाइक एग्जीक्यूट कि ओके आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस. नथिंग कम्स एज अ सरप्राइज बेसिकली. और आफ्टर दैट ऑब्वियसली इट कम्स डाउन टू इवन इन द गेम लाइक हाउ आई टोल्ड यू कि से 16th ओवर में 40-45 रन्स चाहिए. तो आर यू स्टार्टिंग टू प्लान कि ठीक है 16th ओवर में 40 रन्स चाहिए, मे बी I will have to bowl the 20th over and I might have only 8 to 10 runs to defend. So you're already planning in the game, you're planning ahead of what the situation might be. Not necessarily situation वैसे ही आएगा, but if you're planning for the worst, तो anything better than that, अगर आपने 8 रन के बारे में सोचा है और आपको 15 रन मिले डिफेंड करने के लिए, तो great. But you're prepared for those 8 runs. To defend in 6 balls. So those are the things that you prepare for, and then eventually it's all about execution. No second thought while executing whatever you want to do. One last question for this podcast, but please feel free to take your time to answer this question, and we usually do this in every podcast that we've done so far. What would your final piece of advice be to any aspiring cricket player who is watching this podcast? Be really honest about how life gets when you decide to pick cricket as one of your professional careers. Since we've had a chat before this podcast, and since you've shared your experiences as well, one thing I know is that lately people, स्पेशली टीनेजर्स, छोटे बच्चे जिनको क्रिकेट में आगे एस करना है, दे वांट टू पिक अप क्रिकेट एज वन ऑफ देयर प्रोफेशन, दे हैव मेनी ऑफ देम हैव मिसअंडरस्टूड द आइडिया ऑफ बीइंग अ क्रिकेटर. उनको लगता है इट इज़ ऑल फन एंड गेम, इट इज़ ऑल फेम, spotlight, you have a lot, like you'll end up earning a lot of money, people will know you, but the real game is something else. The reality comes down to a lot of struggles, a lot of sacrifices, as you've mentioned prior in this podcast. So what would your advice be to any young aspiring cricketer who's watching this podcast? Don't make cricket your life. It is a part of your life, yes, but when I say don't make it your life, what I mean is a lot of people will misinterpret as कि मतलब ऑल आउट नहीं जाना है क्या क्रिकेट में, ऐसे वैसे. ऐसे नहीं है. क्रिकेट में आप जब भी डिसाइड करते हो कि यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो आपको ऑल आउट ही जाना है. बट व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से डोंट मेक क्रिकेट योर लाइफ इज बेसिकली हैव अ बैकअप. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज लाइक यू सेड कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं. क्रिकेट आप 10 साल के लिए खेलते हो, 10, इफ़ यू प्ले फॉर इंडिया 15-16 साल के लिए खेलते हो. तो द थिंग इज़ कि
over the course of this 10-15 years whatever you will play, you will miss out on a lot of things. You will miss out on family, you will miss out on the fun things in life जो एक normal कॉलेज स्टूडेंट जो एन्जॉय करता है अपनी ज़िंदगी. उनके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उनके स्ट्रगल्स नहीं होते, उनके स्ट्रगल्स अलग होते हैं. बट ये बेसिकली ऐसे है कि आपकी दुनिया ही अलग हो जाती है. तो जब भी आप ये सब स्ट्रगल्स के थ्रू गुजर रहे हो, you want to make something, basically something big in a field that is थोड़ा हट के, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि what if अगर मेरा कल इसमें कुछ नहीं हुआ तो मैं इस 10 साल को रिग्रेट करूँ. What I want to say is कि अगर से आप 10 साल के लिए क्रिकेट खेले हो, ठीक है, आप अगर इंडिया के लिए खेले हो, आप IPL खेले हो रेगुलर, फेयर इनफ, ग्रेट, दैट इज़ वेयर एवरीवन वांट्स टू बी. बट से फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं खेलते हो 10 साल बाद और आप छोड़ देते हो क्रिकेट, तो जब भी आप क्रिकेट छोड़ रहे हो, यू शुड बी इन अ पोजिशन कि आपको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ चलो मैंने 10 साल मेहनत किया, आई गेव माई एवरीथिंग, आई कुडंट मेक इट बिग इन क्रिकेट, बट नाउ आई हैव अ बैकअप जिसमें ठीक है, मतलब बेसिकली ये 10 साल आपके लिए हैप्पी मेमोरीज होने चाहिए, ना कि अरे यार मैंने 10 साल वेस्ट कर दिए, क्रिकेट में कुछ हुआ नहीं, मैंने और कुछ प्लान भी नहीं किया, नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. It shouldn't be one of the reasons of you getting depressed then. Exactly. Yeah, okay. So what I want the children who are aspiring to play cricket, उनके लिए बेसिकली तो ये है कि पढ़ाई मत छोड़ो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आवर कल्चर इज सच कि वी हैव टू चूज बिटवीन क्रिकेट एंड एजुकेशन. बट दोनों हो सकते हैं साथ में, भले केटी लग के, लेकिन आप पास हो सकते हो. ऐसे नहीं है कि आप कंप्लीटली पढ़ाई छोड़ ही दे रहे हो क्रिकेट के लिए. पढ़ाई करो, साथ में क्रिकेट खेलो, क्रिकेट के लिए पूरा एफर्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ क्रिकेट, से फॉर एग्जांपल लाइक आई एम प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट राइट नाउ, आई एम मेकिंग मनी, आई एम मेकिंग डिसेंट मनी. प्लान योर मनी इन सच अ वे दैट 10 years down the line when you stop playing cricket basically, तो you have enough money made for your future, जहाँ पे आप आपके फैमिली का टेक केयर कर सकते हो, एटलीस्ट बेसिक नीड्स आपके फैमिली के आप सफाइज कर सकते हो. दैट इज़ व्हेन दिस एंटायर जर्नी विल बी वेरी प्लीजिंग टू यू. नहीं तो आई हैव सीन क्रिकेटर्स हु आर बेटर देन मी गिव अप ऑन क्रिकेट एट अ पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे मतलब बाद में उनको ऐसे हो गया कि अरे यार मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है अभी, बिकॉज मैं क्रिकेट खेलते वक्त मैंने कुछ अलग से सोचा नहीं. सो इट कैन बी एनी थिंग, एंड आई हैव ऑलवेज बिन ऑफ दिस व्यू. आई डोंट नो हाउ राइट और रॉन्ग इट इज़, बट मैं हमेशा मेरे मम्मी को यही बोलता हूँ कि नथिंग अगेंस्ट द पीपल हु हैव मनी एंड नथिंग अगेंस्ट द पीपल हु डोंट हैव मनी एट ऑल. बट ऐसे है कि क्रिकेट अभी ऐसे हो गया है कि या तो आपके पास कुछ भी नहीं है, या तो आप एकदम रिच हो, योर फैमिली इज सेटल्ड एंड ऑल. दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी इफ़ यू वांट टू प्ले क्रिकेट. जो बीच में होते हैं ना, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली द मैक्सिमम क्राउड दैट प्लेस क्रिकेट, वो फंस जाते इस चीज़ में कि यू नो क्रिकेट कंटिन्यू करना है कि कुछ दूसरा पाथ चूज़ करना है, और उस चीज़ में फंसे रहने में बेसिकली पूरा गड़बड़ हो जाता है सब कुछ. द गाइज हु हैव मनी, हु बेसिकली उनके पेरेंट्स वेल टू डू है, वॉट एवर दे कैन प्ले क्रिकेट आराम से, बिकॉज दे नो कि कल को अगर मेरा क्रिकेट में कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस है, आई कैन ईजीली यू नो स्टेप बैक एंड डू वॉट एवर. एंड द गाइज हु डू नॉट हैव मनी एट ऑल, उनके लिए नथिंग टू लूज है. फॉर देम इट्स लाइक ठीक है क्रिकेट खेलेंगे, पूरा एफर्ट लगा देंगे, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ठीक है, ज़ीरो से आए थे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे वापस. बट पीपल हु आर इन बिटवीन, उनके लिए थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है. सो स्पेशली फॉर दोज
people, those children, I feel कि it is really important, not just children but the parents as well. It becomes very important that if you are pushing your child to play cricket professionally, तो आप in a way उसका monetary journey ऐसे plan करो कि 10 years down the line when he stops playing cricket, अगर उसका कुछ नहीं होता है, if he plays for India, fair enough, great. बट अगर नहीं होता है तो फिर ही इज़ सेटल्ड इनफ कि उसके अगले 10 साल स्ट्रगल में ना गुजरे. फिर ही इज़ लाइक चिल कि हाँ चलो ठीक है, मैंने मेरा मनी अच्छे से प्लान कर लिया, मैंने मेरा साइड बाय साइड करियर जो था वो अच्छे से प्लान कर लिया, नाउ आई एम हैप्पी इन माई लाइफ. सो दैट इज बिकॉज ऑनेस्टली the amount of children that play cricket in the country, I feel not even 1% finally end up playing for say IPL or first class or India. क्योंकि अगर आप just the numbers में जाओगे तो I don't know how many players are playing cricket just in Mumbai. पूरे इंडिया का तो छोड़ दो, 3 मेन मैदान में 25,000 बच्चे भी पकड़े तो भी 75,000 kids are playing in Mumbai right now. तो अगर 75,000 में से आपको मुंबई के टॉप 15 में आना है और फिर मुंबई के टॉप 15 में से IPL के 120 प्लेयर में आना है और फिर IPL के 120 प्लेयर में से आपको इंडिया के 15 में आना है, सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड द रेट ऑफ सक्सेस इन दिस फील्ड. इट इज़ गोइंग टू बी मतलब heavy and when I say heavy it's like really heavy. सो इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, मैं अच्छा हूँ तो मैं मतलब खेल लूँगा. कंपटीशन क्रिकेट में फेयर नहीं है. करेक्ट, फेयर नहीं है. नॉट इन अ वे वेयर आई एम सेइंग कि अरे कुछ उल्टा सीधा काम हो रहा है. फेयर इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट परफॉर्मेंसेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप जब भी परफॉर्म कर रहे हो तभी आपके ऊपर के लेवल का जो प्लेयर है वो भी उतना ही खराब कर रहा है सो दैट यू कैन रिप्लेस हिम. अगर आप अच्छा कर रहे हो और वो भी अच्छा कर रहा है तो आप वही के वही रह जाओगे. तो ये बात नहीं है कि अरे मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे चांस मिलना चाहिए. इट इज़ नॉट हाउ क्रिकेट वर्क्स. सो व्हेन यू आर प्लानिंग टू सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन तो फिर यू ऑल्सो हैव टू हैव अ बैकअप. सो दैट इज़ समथिंग आई फील दैट किड्स नाउअडेज शुड नो. बिकॉज क्या होता है IPL के और ऑल द मीडिया कवरेज एंड जो भी है उसके फेम एंड मनी के बीच में ना ये रियलिटी छुप जाता है. तो बेसिकली वही है कि आई डोंट वांट पीपल टू नॉट नो दिस पार्ट ऑफ दिस साइड ऑफ क्रिकेट. इफ़ यू कैन डील विद दिस साइड ऑफ क्रिकेट एंड स्टिल प्ले, फेयर इनफ, नथिंग लाइक इट. एंड एज अ क्रिकेटर मुझे तो चाहिए कि और लोग क्रिकेट खेले, but not at the cost of sacrificing 10 years down the line कि अरे यार मैं क्यों ही खेला, मैं नहीं खेलता कुछ और कर लेता तो शायद इससे ज़्यादा पैसे कमाता, ज़्यादा फेम होता. ये सब रिग्रेट नहीं होने के लिए आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्लान योर जर्नी वेरी वेल. एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट डजेंट हैव टू बी कि अरे मुझे क्रिकेट में ही करना है. क्रिकेट में भी है, लाइक इवेंचुअली यू कैन बिकम कोचेज, अंपायर्स, मैच रेफरीज, कमेंटेटर्स, बहुत कुछ है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील एवरीवन शुड हैव देयर ओन बैकअप प्लान. इट्स अ मस्ट. या 100%. अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया. All right, Roshan bhai, thank you very much for doing this podcast. Firstly, on my behalf and on behalf of every Indians, we hope to see you playing for India. And I would be absolutely like so happy that I'm seeing Roshan bhai playing for India. Once upon a time, he without any hesitation he just accepted for the podcast. So thank you so much, bro. It means a lot. And Pleasure is all mine. I was very happy with the podcasting experience today. How was it for you? Since it was your first podcast. Yeah, it was मतलब मैंने बोला कि मैं नर्वस नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली थोड़ा तो बेसिकली यू फेक इट. जो क्रिकेट में हम लोग करते हैं वही यहाँ पे किया मैंने थोड़ा सा. बट या इट वाज फन. इट वाजंट एज नर्व रैकिंग एज आई थॉट इट वुड बी. फन चैट.
I wasn't expecting it to be so long. मुझे लग रहा है it's just 20-25 minutes we've been talking. I'm not kidding. Yeah, Do you feel didn't the same? feel like इतना time निकल गया. बहुत ज़्यादा. But it was a fun podcast. It was an amazing podcast. I look up to having you again on the podcast, bro. Sure. You know, once like proper हम वापस करेंगे तब तक hopefully हमारे भी subscribers and we'll have like good amount of audience watching the podcast, good amount of audience out there to consume something raw, 100%. as raw as possible. And by I then, myself, I keep watching a lot of podcasts, though I'm sure कि a lot of people are interested in this. kind of yeah. stuff. And I'm glad India is picking up on podcasting now. Yeah. so Subscribe glad. करो. Subscribe करो. Subscribe करो और दुआ करो. चलो, thank you so much, bro. Thank you. It was a pleasure. Yes. Same here. Signing off. Three, two, one, go. A big shout out to Custom Structures and Alcasa for providing us this beautiful studio for our podcasting. These people, they master when it comes to interior designing. I do want you guys to go check their work out. I'll add the link to their website in the description below. So please go check it out. Thank you.